Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and fit and fine at your home. So dear students, as you have told me that some of you have not available the NCERT book. So that's why I'm making the video like this, that you can see the complete book of NCERT. So today we will start a new chapter, that is chapter 19 of class 11th, that is excretory products and their elimination. So dear students, today in this class we will discuss about the different excretory organs of different organisms, means animals, and their excretory products. So now let's see what are the different type of excretory products, what are the excretory organs, and how they remove or eliminate the toxic that are produced inside their body. So as we know, animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc. Thereby metabolic activities or by other means like excess ingestion. These substances have to be removed totally or partially. In this chapter, we will learn the mechanisms of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste. Ammonia, urea and uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by animals. Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed with a minimum loss of water. So now let's understand this. What is the paragraph means? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट है, एज एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट क्या एक्यूमुलेट होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ आयन्स जैसे कि क्लोरीन, सोडियम, पोटासियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब। तो ये कैसे एक्यूमुलेट होता है, कहाँ से आता है? जब हम खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो उस खाना खाने के बाद जब इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, मतलब डाइजेशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको तो बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है, पर जो अननेसेसरी, जो कि अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो हमारी बॉडी उसको क्या करता है? एलिमिनेट कर देते हैं, आइदर फुली और पार्शियली। इट मीन्स पूरा का पूरा एलिमिनेट करता है या फिर थोड़ा बहुत करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने का, अननेसेसरी सब्सटेंस को बॉडी से एलिमिनेट करने का, उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। सो सिंपली वी कैन डिफाइन excretion is the process of removing or eliminating the toxic substances that are produced inside our body. So different type of organisms excrete different type of excretory products and they are categorized into three types. Some release ammonia, some release urea and some release uric acid. So which animals or which organisms release ammonia, which organisms release uric acid and which organisms release urea? So let's see that what are these organisms said. Simply the process of excreting ammonia is called as ammonotelism. मतलब जब अमोनिया को हम बॉडी से रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिज्म का एग्जाम्पल हम क्या लेंगे और कौन कौन सी एनिमल्स ये प्रोसेस करते हैं अपनी एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए, तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहा जाता है और जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनको अमोनोटेलिक, द वर्ड इज अमोनोटेलिक. So ammonotelic means the organism which release the excretory product in the form of ammonia. और हम एग्जाम्पल किस किस का ले सकते हैं? हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे बोनी फिश का, एक्वाटिक एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस पता है जो बोथ वाटर में और लैंड में रहते हैं, पर ये जो एम्फीबियंस है कंप्लीट एक्वाटिक है, मतलब पानी में रहते हैं। एक्वाटिक इंसेक्ट्स जो कि पानी में रहते हैं, जो इंसेक्ट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अमोनिया, जैसे कि हमें पता है
as it is readily soluble is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface in fish as ammonium ions। इसका मतलब है ये सॉल्युबल है, पानी में ये मिक्स हो जाता है। तो ये कैसे रिलीज होता है? या तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है या फिर गिल्स के थ्रू होता है, जैसे कि फिश के केस में होता है, मछली के केस में होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये रिमूव कर देते हैं। और टेरेस्ट्रियल अडप्टेशन क्या होता है? टेरेस्ट्रियल अडप्टेशन में जो लिस्ट जो कम टॉक्सिक सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर, उसको रिलीज करने के लिए या तो हम रिलीज करते हैं उस नाइट्रोजनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिया या फिर यूरिक एसिड। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होती है। 3 टाइप की सब्सटेंस रिलीज होती है। एक हो गया आपका अमोनिया, दूसरा हो गया आपका यूरिया, तीसरा हो गया आपका यूरिक एसिड। जो अमोनिया रिलीज करते हैं वो हो गए अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करते हैं वो हो गए यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं वो हो गए यूरिकोटेलिक। सो इस हिसाब से 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट को रिलीज करने के हिसाब से। इट मीन्स all the organisms are categorized into 3 different types on the basis of their excretory product they release, means whether they are releasing ammonia or urea or uric acid। so अमोनिया के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि अमोनिया जो है एक सॉल्युबल है और ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बॉडी सरफेस से बाहर चला जाता है, और कुछ फिश में क्या होता है ये गिल सरफेस के थ्रू चला जाता है। ठीक है। सो किडनीज डू नॉट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। बेटा आपको ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो किडनी है उसका कोई भी रोल नहीं होता है अमोनिया को रिलीज करने में। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। अमोनिया की रिमूवल में किडनी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। सो ये कैसे रिलीज होता है? टेरेस्ट्रियल अडप्टेशन नेसेसिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि जो पानी में रहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे, जो पानी में रहते हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल है और मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो पानी में ऑलरेडी पानी तो है ही है, तो इसलिए ये अमोनिया को रिलीज कर देते हैं। पर जो लैंड में रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं, वो अमोनिया को रिलीज करने में उनको दिक्कत होती है। तो वो उनकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं? या तो यूरिया के फॉर्म में या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो यूरिया और यूरिक एसिड फॉर्म में रिलीज करने से क्या बेनिफिट मिलता है? पानी कम लगता है, पानी का खर्चा कम होता है। सो टेरेस्ट्रियल अडप्टेशन नेसेसिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water. Mammals, many terrestrial amphibians and marine fish mainly excrete urea and are called as uriotelic, जो कि मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि यूरियोटेलिक क्या होता है। यूरियोटेलिक वो होते हैं जो यूरिया को रिलीज करते हैं। ममाल्स, ममाल्स मतलब हम ह्यूमन बींग्स, हम यूरिया रिलीज़ करते हैं। जैसे कि यूरिन बोला जाता है हमारा, जो हम यूरिन रिलीज़ करते हैं, तो यूरिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो मेन टॉक्सिक हम हमारी बॉडी से निकालते हैं उसमें यूरिया होता है। और कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, उससे पहले मैंने बताया था कि एक्वाटिक एम्फीबियंस जो कि अमोनोटेलिक के अंदर आए थे, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जैसे कि लैंड फ्रॉग हो गया, ये क्या रिलीज़ करता है? ये भी यूरिया रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि पानी की कंजर्वेशन के लिए, मतलब पानी का कम से कम यूज़ करके टॉक्सिक को बॉडी से निकाल सके। ठीक। सो ammonia produced by metabolism and converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys। सो जो अभी आप क्वेश्चन पूछते मेरे से कि मैम जो अमोनिया है बॉडी के अंदर, जो अमोनिया फॉर्मेशन हुआ, अगर किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा तो फिर ये हमारी बॉडी से कैसे रिलीज होता है? याद रखना, अमोनिया का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है
और लीवर में अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, उसके बाद वो यूरिया जाता है किडनी में, किडनी में ब्लड के थ्रू ये फिल्टर हो जाता है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन और आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी। सपोज जब आपको वोमिटिंग हो जाती है या फिर लूज मोशन होती है तो हमारी बॉडी से फिकल मटेरियल, जो लिक्विड फिकल मटेरियल रिलीज होता है या फिर वोमिटिंग के फॉर्म में जो हम रिलीज़ कर देते हैं, उस दौरान हमारी बॉडी सॉल्ट लॉस करता है। तो उस सॉल्ट लॉस को मेंटेन करने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। किडनी उतना ही सॉल्ट को बाहर निकालता है जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। सो सम अमाउंट ऑफ यूरिया, अगर कुछ यूरिया रह गया बॉडी के अंदर तो वो क्या होता है? किडनी मैट्रिक्स के अंदर से जाके ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या होता है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। 3 बताया था मैंने। अभी जो मैंने बताया रेप्टाइल्स जानते हो आप, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स। स्नेल्स देखा होगा आपने, जिसको पाइला बोलते हैं, पढ़ाया था हमने, 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में नहीं रिलीज़ करते, ये रिलीज़ करते हैं कौन सी फॉर्म में? यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो कैसे रिलीज़ करते हैं? या तो पेलेट, पेलेट का मतलब होता है जैसे कि जो फिकल मटेरियल रिलीज़ करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, पेलेट के फॉर्म में, जैसे गोली बोलते हैं ना, गोली के फॉर्म में। या फिर पेस्ट, जैसे पेस्ट होता है, देखा होगा बर्ड्स जब फिकल मटेरियल रिलीज़ करते हैं तो वो पेस्ट जैसे होता है, और जिस जगह पे ये फिकल मटेरियल रिलीज़ करते हैं वो उस जगह को जला देता है। क्यों जला देता है? क्योंकि उसमें एसिड होता है, और एसिड का नेचर क्या होता है? कोरोड कर देना। किसी भी मटेरियल के ऊपर जब ये फॉल होता है तो उसको क्या करता है? कोरोड कर देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फिकल मटेरियल है ये किसी रेप्टाइल का है या बर्ड का है या स्नेल का है? अगर उस रीजन से वो निशान नहीं जाएगा, कोरोड हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, तो यूरिकोटेलिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देती हूँ। अमोनोटेलिक मतलब जो एनिमल्स अमोनिया को, नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया को रिलीज़ करते हैं। यूरियोटेलिक जो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को रिलीज़ करते हैं एज एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट। और यूरिकोटेलिक जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। क्लियर है? सो नेक्स्ट जो है ये बोला जा रहा है कि एनिमल किंगडम में जितने भी स्पीसीज है उनके ऊपर जब सर्वे किया गया, ये देखा गया कि अलग अलग एनिमल्स का जो एक्सक्रीटोरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ये तो हो गया एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट, 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। फिर इनकी जो ऑर्गन्स है, एक्सक्रीटोरी ऑर्गन, जैसे हमारे पास किडनी है एक्सक्रीशन करने के लिए, वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब एक स्टडी किया गया, सर्वे किया गया, ये पाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें ट्यूबुलर फॉर्म्स होता है जिसके थ्रू वो अपना एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स में किडनी होता है, इन्वर्टिब्रेट में ट्यूबुलर फॉर्म होता है। तो इन्वर्टिब्रेट का अगर हम देखेंगे तो एक एग्जांपल है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल जिसको हम बोलते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया नेफ्रिडिया से पहले जो बना था, ठीक है। नेफ्रिडिया एनालिड्स में होता है, और नेफ्रिडिया से पहले इनिशियल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन केस ऑफ सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटोरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स जो है वो एक्सक्रीटोरी स्ट्रक्चर है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल भी आपको पता है, प्लेनरिया, ठीक है, जो कि फ्लैटवर्म के अंदर आता है। और किसका है? रोटिफॉर्ड्स, some annelids and cephalopods like Amphioxus. Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume
आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन भी मैंने आपको बताया कि मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन और आयन कंसेंट्रेशन और सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप की सॉल्ट चाहिए होता है, तभी तो हम नमक खाते हैं। नमक नहीं खाते तो अलग अलग फ्रूट्स में भी नमक होती है जो हमारी बॉडी की सॉल्ट की रिक्वायरमेंट पूरा करता है। अगर सॉल्ट रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो ऑस्मो रेगुलेशन इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। सो some annelids and cephalopodates like Amphioxus, Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volumes regulation, that means osmoregulation। तो osmoregulation समझ गए क्या है। Nephridia are the tubular excretory structures of earthworms and other annelids। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, नेफ्रीडिया किसका है, नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटोरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनालिड्स। अदर एनालिड्स में हम लीच को ले सकते हैं, अदर एनालिड्स में हम किसको ले सकते हैं, लीच को ले सकते हैं। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। क्लियर। सो नेफ्रीडिया का काम क्या है, जो किडनी का काम है वही नेफ्रीडिया का काम है। तो किडनी के थ्रू जब हम एक वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन होता है। तो नेफ्रीडिया के थ्रू ये ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आर्थवर्म या और एनालिड्स जो हो गए, लीच वगैरह, ये इनका ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या करते हैं, नेफ्रीडिया के हेल्प से एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट को ये रिलीज करते हैं। क्लियर है। Malpighian tubules are the excretory structures of most of the insects including cockroaches। ठीक है, तो कॉकरोचेस का एक्सक्रीटोरी ऑर्गन का नाम क्या है, माल्फिगियन ट्यूबुल। एनालिड्स का एक्सक्रीटोरी ऑर्गन का क्या नाम है, नेफ्रीडिया। प्लेटिहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटोरी ऑर्गन का नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल। तो ऐसे ही आपको समझना है, कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना है, ठीक है। सो माल्फिगियन ट्यूबुल के थ्रू जब एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट रिलीज होता है, ये भी क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है उन ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि कॉकरोच का एक्सक्रीटोरी ऑर्गन का नाम माल्फिगियन ट्यूबुल्स। और एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में होती है, जैसे कि क्रस्टासियंस। क्रस्टासियंस मतलब प्रॉन, झींगा देखा होगा आपने, झींगा मछली पता है आपको। सो जो ये झींगा है ये एक एक्वाटिक क्रस्टासियन है, इसका एग्जाम्पल हम प्रॉन ले सकते हैं। और प्रॉन में कौन सी एक्सक्रीटोरी ऑर्गन होता है, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड। क्लियर स्टूडेंट्स। सो फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू excretory organs of different organisms. In our next class we will study about human excretory system.